Secretary Rotarian, you know, now without waste, I will request our members, and I have committed that we should start our meeting on time and also adjourn on time, possibly by 8:30. So without wasting any time, I'll request our past president D.W. Misra to please go ahead with introducing our speakers, and then Rotarian Pramod Rath, please coordinate with the program. Pramod Das. Pramod Das. Sorry, I'm sorry because I am having a friend of mine, Pramod Rath. He was a PDG from 3260. So anyway, I'm so sorry. Rotarian Pramod Das, please coordinate. Now it is time of past question Rotarian DW. Hope this is visible to everybody. My screen is visible to everybody? Yes, please go ahead. Yeah. Today, we have two eminent speakers who will be speaking on Vraksha, Aushadhi, and Vanaspati. I'll introduce Sadhvi Nityabodhaji. She is from Art of Living, and she is an MA BAd. She has done M Library, Master's Library, blessed by Puja Gurudev ji to teach chantings. With Gurudev's blessing, she has traveled across India, and she has taught a lot of people during lockdown the chantings. Nearly 10,000 people she has taught different kind of chanting. She is dedicated to Sanatan Dharma. I'll also introduce our Dr. Tapas Sarangi. He is from Bhubaneswar only, but he is an Art of Living, and he is MD Ayurveda, is a gold medalist. He is Nadi consultant in Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research, Bhubaneswar, Sri Sri University of Odisha. He has 21 years of pure classical Ayurveda practice. He has presented papers in many national and international conferences. His papers were adjudged as Best Paper Award in International Conference of Ayurveda. And his teaching techniques of all the Art of Living techniques. He is a faculty in Art of Living, and he is teaching many courses in Art of Living. He is very fond of Gau Seva. In his home in Santrapur, he has got about half a dozen good cows, and Gurudev also promotes Gau Seva everywhere. Right? So I just wanted to mention this, right? And you can participate in Gau Seva if you need any time. Is help. May I request Sadhvi ji to please address us and enlighten us on the subject of Vriksha, Aushadhi, and Vanaspati. Welcome, Sadhvi. प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। सभी रोटेरियंस को मेरा प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ और आपका आभार भी प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपसे संवाद कर सकूं इस विषय पे। आज का विषय है औषधि वनस्पति। तो हमारे साथ डॉक्टर तापस सारंगी जी भी हैं, जो ये जो एक वृक्ष या वनस्पति है, उनकी औषधि इस एस्पेक्ट पे हमें ज्यादा मार्गदर्शन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए एक संस्कृत श्लोक है कि वृक्ष हमें इस जीवन में तो काम आते ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी ये हमारे तारणहार है। इसके एक संस्कृत श्लोक है। थोड़ा आवाज आ रहा है किसी से, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिएगा। ऑल आर म्यूट नो? एक मिनट है, आपको फिर मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। तो सुभाषित कुछ ऐसा है कि पुष्पिताः फलवन्तश्च
तर्पयन्त्येह मानवानां वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। इसका अर्थ क्या है? फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वृक्ष देने वाले अर्थात समाज हित में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में भी तारण वृक्ष ही करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोटरी क्लब जो है, इनकी बहुत सारी समाज सेवी गतिविधियां नित्य निरंतर शुरू रहती है, जिसमें वृक्षारोपण भी एक प्रमुख गतिविधि रहती है, जिसे रोटरी क्लब बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से निभाते हैं। तो आप सभी के लिए ये सुभाषित समर्पित था। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक आपने जितने भी वृक्षारोपण किए हैं उसके लिए, और आप एक तरह से इस पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तो वृक्ष हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है प्राणवायु, वो प्रदान करते हैं। प्राणवायु का महत्व तो अभी हम सब जान ही चुके हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में सबसे जरूरी चीज जो थी वो क्या थी? प्राणवायु, ऑक्सीजन थी। इसीलिए वृक्षों का अभी हमें संवर्धन करना, उनका रोपण करना और उनका जतन करना अत्यंत महत्वपूर्ण एक विषय बन चुका है। और अभी जैसे वर्षा ऋतु शुरू है, तो अभी अगर इनका रोपण किया तो ये जल्दी से अच्छे से पनप भी सकते हैं। तो हमारे पुराणों के अनुसार अगर हम वृक्षों के संदर्भ देखें तो ये कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे कि रुद्र पूजा में हम शिव जी को बिल्व चढ़ाते हैं। तुलसी अर्चना, तुलसी अर्चना विष्णु भगवान को एकादशी के दिन जो होती है, तो हम तुलसी अर्चना के दिन, तुलसी अर्चना के समय तुलसी से भगवान को पूजन करते हैं, विष्णु भगवान को। और आज रथ यात्रा है, तो सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं और जय जगन्नाथ। और मुझे ये पक्के मतलब विश्वास है कि जगन्नाथ जी के नैवेद्य में भी तुलसी पत्र जरूर चढ़ता ही होगा, उसके बगैर तो नैवेद्य अर्पण नहीं होता होगा। तो हमारे नैवेद्य में भी तुलसी पत्र अगर रखा जाए तो ही वो नैवेद्य अर्पण किया गया है, पूर्णतः अर्पण किया गया है, ऐसा एक विधान जो है वो है ना, सभी जानते हैं ना। फिर हमारी जो सारी पूजाएं हैं उसमें नैवेद्य अर्पण करते हैं, उसके बाद क्या अर्पण करते हैं? तांबूल अर्पण करते हैं। तांबूल मतलब बीड़े का पत्ता। गणपति की अर्चना में हम दुर्वा अर्पण करते हैं। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत के कई भागों में होता है। उसमें पहले दिन जब गणपति बैठते हैं और उनके साथ जो महालक्ष्मी की स्थापना होती है, तो उसमें 21 तरह की पत्री चढ़ाई जाती है। और दूसरे जो भी, जैसे कि नवरात्रि है, देवी का उत्सव है, या गणेश उत्सव है, या शिव जी की भी पूजा है, इसमें भी 108 बीड़े के पानों का श्रृंगार करने की भी पद्धति साउथ इंडिया में और बहुत सारे भारत के जो प्रदेश है उसमें प्रचलित है। दूसरा, पांडवों ने जब अज्ञातवास गए थे तब उन्होंने अपने वृक्ष शमी वृक्ष में छुपा के रखे थे, और जब उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया तब उन्होंने शमी वृक्ष का पूजन करके वो वृक्ष फिर से लिए। ये महाभारत में ये कथा आती है। तभी से विजयादशमी मतलब दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की पद्धति शुरू हो गई। और ये शमी के जो पत्र है ये गणपति अर्चना में भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा और एक वृक्ष का महत्वपूर्ण संदर्भ आता है, वह है वट पूर्णिमा, जो अभी ज्येष्ठ महीने में जो पूर्णिमा होती है, जो नॉर्थ इंडिया में अमावस्या के दिन मनाई जाती है और यहाँ दक्षिण भारत में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। उस दिन स्त्रियां वट के वृक्ष को सूत के धागे से 7 प्रदक्षिणा करती है और अपने पति तथा उनके कुटुंब के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। हाँ, और तीसरा सबसे लोकप्रिय वैष्णव जो भी है उनका सबसे लोकप्रिय जो उत्सव है वो कौन सा है? तुलसी विवाह। कार्तिक एकादशी, दिवाली के उत्सव के बाद जो एकादशी आती है कार्तिक माह में, उसके बाद तुलसी विवाह, तुलसी और आंवले का विवाह जो किया जाता है। यहाँ तुलसी और आंवला जो है, तुलसी देवी मानी जाती है और आंवला जो है ये विष्णु माने जाते हैं। तो आंवला और तुलसी का विवाह तुलसी विवाह के दिन किया जाता है। दूसरा, आवड़े नवमी करके एक उत्सव आता है, उसमें आवड़े के वृक्ष को विष्णु मान के उनकी पूजा की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, ऐसे विभूति योग में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, ऐसे साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और जैसे कि
क्या कहते हैं उसको, बटू जो कोई घर से जाते हैं तो पीपल के वृक्ष पे, मतलब किसी घर से कुमार वय या उससे भी छोटी उम्र से जो कोई बच्चे चले जाते हैं तो उनकी शांति के लिए पीपल के वृक्ष को नैवेद्य चढ़ाते हैं। ये भी एक प्रथा है, पता है ना सबको। और पीपल के वृक्ष को जल देने से बहुत सारे ग्रहों की पीड़ा भी शमन होती है, ऐसा कहते हैं। और पीपल के वृक्ष को जल देने से विशेषतः शनि की पीड़ा जो है वो शांत होती है, ऐसा कहते हैं। दूसरा और एक है कि हम सभी जीवन में हमने एक एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए, ये हमारे धर्म ने हमें सिखाया है। जैसे कि पहले बड़े बड़े घर होते थे और इन घरों के आंगन होते थे, और घर के आगे का आंगन और पीछे का आंगन, ऐसे दो तरह, मतलब दो भाग उसके होते थे। और पीछे के आंगन में केला, आम, नींबू, ऐसे सारे जो औषधि वनस्पति या फल देने वाले वृक्ष होते थे वो लगते थे। और घर के आगे का जो हिस्सा, इसमें सारे फूल और शोभा दायक जो वनस्पति होती थी वो होती थी, बराबर है ना। लेकिन आज तो सब फ्लैट संस्कृति आ गई। लेकिन फ्लैट संस्कृति आने के बावजूद भी आज भी हमारे हर एक हिंदू घर में तुलसी का वृक्ष होना अत्यंत जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे भी तुलसी का वृक्ष है, वो तुलसी का वृक्ष उस घर में रहने वाले सारे परिवारजनों की अशुभ शक्तियों से और अशुभ लक्षणों से रक्षा करता है। तो इसका क्या अर्थ है? तुलसी के जो गुण है, उसमें जो औषधीय गुण है, उसको अगर हम ग्रहण करते, प्राशन करते हैं, तो हमें जो भी वातावरण से आने वाले जो रोग है उससे हमारा रक्षण होता है। तुलसी ऑक्सीजन और उसके साथ ओजोन निर्माण करने वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसलिए हर एक घर में तुलसी का पौधा लगाने का हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म का ये जो परंपरा है, ये निश्चित ही अत्यंत उल्लेखनीय है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, इसमें जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभी शिवलिंग को अगर हम देखें तो वो क्या है, बताइए आप? स्फटिक है। स्फटिक क्या है? एक पत्थर का प्रकार। हाँ, तो ये देखिए, फिर स्फटिक की पूजा की पद्धति है। फिर प्राणियों की पूजा की पद्धति है, जैसे कि नाग पंचमी को नाग की पूजा की जाती है ना। गौ पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, गज पूजा की जाती है, अश्व पूजा की जाती है, प्राणियों की भी पूजा की जाती है कि उसमें भी ईश्वर है। वृक्ष की भी पूजा की जाती है, जैसे तुलसी की पूजा की जाती है, वट की पूजा की जाती है, वृक्ष में भी ईश्वर है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे ये जो संस्कृति है ये इको फ्रेंडली पहले से ही है। उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि है, जो बड़े ही मेधावी थे, तत्वज्ञ थे, समाज के मन का, समाज मन का और व्यक्ति के मन का उनका एकदम गहन अभ्यास था। और उन्होंने ये बात भाप ली थी कि सृष्टि मतलब व्यष्टि और समष्टि, मतलब व्यक्ति और सृष्टि का संबंध जो है, ये अगर समतोल में रहा तो ही व्यक्ति का जीवन सुखदायक और आरोग्यपूर्ण हो सकता है। इसीलिए हमारी सारी पूजा पद्धतियों में वनस्पतियों को अर्पण करने की एक जो विशेष पद्धति है वो सारे ऋषि मुनियों ने लगा दी, जिससे कि ये व्यक्त हो, ये महत्व जो वनस्पतियों का महत्व है ये बना रहे। और ये जो दिव्य वनस्पतियां हैं, जैसे कि नियम है, वड का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, औदुंबर का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, ये काटे नहीं जाते। पीपल का वृक्ष, पता है ना आपको कि इनको काटना महापाप माना जाता है, पता है ना आपको? उसमें भी वड का वृक्ष जो होता है वो अक्षय वृक्ष मानते हैं। मतलब कितना भी अकाल हो, लेकिन ये वट का वृक्ष हमेशा हरित ही रहता है, हरा भरा ही रहता है, और इट विल रिमेन ग्रीन। जब कुछ भी नहीं होता है खाने को, तो ये जो वट वृक्ष है ना, ये वट वृक्ष के पत्ते खा के भी हम सरवाइव कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है। इस तरह से वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। हमारे घर में जो फर्नीचर है या घर बनाने के लिए जो लकड़ी लगती है, बाम्बू लगता है, वो सब कहाँ से आता है? वृक्ष से आता है। व्यक्ति जब जन्म होता है तो उसके लिए जो झूला बनता है, और व्यक्ति जब ये दुनिया छोड़ देता है उसके लिए जो चिता जलती है, उसके लिए भी वृक्ष की लकड़ी ही काम आती है। इस तरह से वृक्ष की जो भूमिका है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार जो भी पूजा होती है उसमें एक पंक्ति आती है, ऋतु कालोद्भवानी पत्राणी फलानी पुष्पाणी च। इस ऋतु के अनुसार जो भी उद्भव होने वाले फल
पत्र और पुष्प है, हे परमेश्वर मैं अत्यंत भावपूर्ण और यथाशक्ति आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इनका ग्रहण कीजिए, इनको आप स्वीकार कीजिए। तो ईश्वर ग्रहण करते हैं क्या? हाँ, जब भक्त, अगर एकनाथ, संत एकनाथ जी जैसे भक्त हो तो नैवेद्य साक्षात ईश्वर ग्रहण भी करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से और तर्क शास्त्र दृष्टिया इस सारी पद्धतियों का विचार करें तो भगवान के लिए जो भी हम अर्पण करते हैं, जो भी वस्तु है, जैसे मैंने कहा बिल्व पत्र, दुर्वा, तुलसी पत्र, शमी और जो कुछ भी हम ये जो वनस्पति है ये चढ़ाते हैं, तो ये अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये सारे, और बीड़े का पत्ता, ये सारे हम अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए ये आरोग्यदायी निश्चित ही साबित होता है। पता है ना सभी? तो परमेश्वर को जो अर्पण किया जाता है वो मूलतः हमारे आरोग्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्व से पित्त का शमन होता है, उष्णता शांत होती है, तुलसी से कफ प्रवृत्ति शांत होती है, दुर्वा से, दुर्वा का जो रस होता है उससे आंखों के अनेक प्रॉब्लम्स या पेट की जो पचन की लिए और कोई बातें होती है या पीड़ा होती है वो कम होती है। जैसे कि आप देखिए वास्तु शांति है, उपनयन है, उसमें भी हम देखें तो पंचगव्य का प्राशन करने को बोलते हैं। पहले प्रायश्चित्त जो होता है उसमें पंचगव्य का प्राशन होता है, पता है ना आप सभी? और जो उपनयन में जो समिधा, मतलब जब वो बच्चे को ब्रह्मोपदेश होता है उसमें यज्ञ होता है, उसमें जो समिधाएं होती है वो भी 5 संविधा होती है। पंच पल्लव मतलब 5 तरह के पत्र लगते ही है, पंच संविधा। उसमें औदुंबर, अश्वत्थ, बड़, पीपल और अशोक, ये 5 मुख्य पल्लव है और ये 5 मुख्य संविधाएं हैं। इनसे ही हवन होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा और क्या होता है कि जब हम कलश स्थापन करते हैं तो कलश स्थापन में भी हम वीड़े के पत्ते या तो फिर आम के पत्ते या जो ये पंच पल्लव है उनका कलश, उसको कलश में रखते हैं और उसके ऊपर फिर नारियल रखते हैं। शादी के घर में, विवाह के घर में अगर आप देखें तो दरवाजे पे हम क्या लगाते हैं? बहुत सारे आम के पत्ते या जामुन का एक ऐसा मांडव, मांडव को क्या बोलते हैं, मंडप ऐसा बनाते हैं ना। गांव में अगर आप शादियां देखते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे आम की टहनियां या ऐसे छोटे छोटे जो उसके क्या बोलते हैं, उसको टहनी ही बोलते हैं, वो लगाते हैं और जामुन का एक ऐसा मंडप बनाते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस छोटे से घर में उस विवाह विधि के लिए बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं और उनको प्राणवायु मिले, इसलिए उस वृक्ष का पत्तियां लगाने का ही पद्धति है। आप जानते थे ये बात सभी? इसीलिए आम का तोरण लगाया जाता है। दूसरा, गुड़ी पाड़वा के दिन, गुड़ी पाड़वा जो होता है चैत्र महीने का पहला दिन, मतलब हिंदू संवत्सर का और नव वर्ष का पहला दिन, गुड़ी पाड़वा, चैत्र प्रतिपदा जिसे कहते हैं। उस दिन कडुलिंब के वृक्ष के पत्ते का बहुत महत्व बताया जाता है। कडुलिंब के वृक्ष को, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसकी टहनी गुड़ी पे सजाई जाती है और जब वो उस दिन की शुरुआत वो कडुलिंब का जो पत्ता है और गुड़ है उसके प्राशन से की जाती है। तो इससे क्या होता है, चैत्र महीने में उष्णता बढ़नी शुरू हो जाती है और पित्त का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो ये इतना साइंटिफिक है, आप सुनिए जरा। तो चैत्र के प्रतिपदा को हमने कड़वा नीम और गुड़ ग्रहण किया। उसके बाद आती है 9वें दिन रामनवमी। उस दिन हमने सुंठ वड़ा मतलब सुंठी और गुड़, खोबरा और खड़ी साकर ये ग्रहण किया। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा वात और कफ शमन हो गया। और उसके बाद आती है पूर्णिमा, हनुमान जयंती। उस दिन क्या, धना, धना की जो पाउडर होती है ना, साबुत धना, उसकी पाउडर, उसमें खड़ी साखर और डाया जो होते, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, फुटाना को क्या बोलते हैं हिंदी में, चना, चना जो भुना हुआ चना होता है वो खिलाते हैं और खोबरा खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, वात का शमन होता है। तो ये जो डोज है ना, ये औषधि का डोज है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये तय करके दिया है कि चैत्र प्रतिपदा को कड़वा नीम का पत्ता और गुड़ प्राशन करना है। 9वें दिन जो रामनवमी आएगी उसको धने सुंठ वड़ा मतलब सुंठ का और गुड़ का प्राशन करना है। और उसके बाद हनुमान जयंती जो पूर्णिमा आएगी उसको हमें धना पाउडर जो है वो और गुड़ का प्राशन करना है, सेवन करना है। तो ये अगर हम 3 डोज लेते हैं तो पूरे साल भर हमारी प्रकृति एकदम अच्छी रहती है। तो ये जो सारी वनस्पति है, और एक बात, हमारा जो रोज का खाना है उसमें अगर आप देखेंगे तो धनिया पत्ता, कढ़ी पत्ता, फिर
जो सारी वनस्पति, मसाले के सारे पदार्थ, मिर्च है, लौंग है, हल्दी है, अदरक है, जानते हैं ना आप, हम सभी रोज खाना खाते हैं। तो ये सारा जो मसाले की वनस्पति है, इस हर एक वनस्पति में, जीरा है, धना है, राई है, हर एक वनस्पति में औषधि गुण है। और इसी वजह से भारत में कोरोना लोगों को कम बाधित करा। पता है आपको ये? क्योंकि हमारे आहार में ही ये सारी औषधियों का मिश्रण है। तो इस तरह से ये सारी वनस्पतियां और ये सारे वृक्ष हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। और मानव जब हम अपने आप को कहलाते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम इन वृक्षों का संवर्धन करें और इनको रोपण करें और इनका जतन करें। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि पंचवटी, आध्यात्म के दृष्टिया अगर हम इसका ध्यान धारणा की दृष्टिया इसका महत्व देखें, पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, जिसके अभी का उदाहरण देखें तो श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्हें ठाकुर जी कहते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के अपनी आह्निक पूजा सब पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त पे पंचवटी में ध्यान करते थे रोज। तो इससे क्या होता है, आध्यात्मिक साधना बहुत अपलिफ्ट होती है और गहन ध्यान होता है। तो ये 5 वृक्ष कौन से होते हैं? कड़वा नीम, आम, पीपल, बड़ और औदुंबर, ये और अशोक, ये 5 वृक्ष होते हैं। इनके पंचवटी में ध्यान करने से इन पवित्र वृक्षों की पवित्र और अत्यंत शक्तिदायी स्पंदन जो है ये हमें मिलते हैं। और फिर इनसे हमारा शरीर पूर्ण होता है, प्राणवायु हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ग्रहण किया जाता है और हमारी आध्यात्मिक साधना भी एकदम अच्छे से और गहन होती है। तो आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन के लिए माननीय डॉक्टर तापस सारंगी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच डीडब्ल्यू मिश्रा जी, वेलकम। बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस आ गया अंकल। हाँ, तो एक जोक से मैं शुरू करता हूँ। आज एक बड़ा अच्छा सा जोक आया फेसबुक पे मेरे पास। आई थिंक हिंदी इज कंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी, सबको कंफर्टेबल। तो एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? पति गुमसुम। हाँ? तो इसका आज के टॉक से कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा सा रिलेशन है एक्चुअली। मेरे को पता है एक्चुअली रोटरी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ट्री प्लांटेशन इतना व्यापक परिमाण में कर रहे हैं और काफी सारे संस्था भी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉक है वृक्ष औषधि वनस्पति, ऑलमोस्ट सारा सेम ही है, खाली टॉक को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए ऐसा लिख दिया है। वृक्ष मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऑल ट्रीज। वनस्पति मतलब जो भी ग्रीनरी है, जो भी प्लांट्स है, सारा वनस्पति में आ गया। और औषधि मतलब औषधि और फूड में बड़ा छोटा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस है पोटेंसी का। देखिए, चावल भी प्लांट से ही आता है और तुलसी भी एक प्लांट है, लेकिन डिफरेंस है लेवल ऑफ वर्किंग। जो पोटेंसी है, तुलसी में थोड़ा पोटेंसी ज्यादा है, चावल में कम है। इसलिए फूड जो लेते हैं ज्यादा परिमाण में लेते हैं, औषधि जो लेते हैं, मेडिसिन जो लेते हैं, उसको कम परिमाण में लेते हैं। मेन बेसिक ये है पोटेंसी। और पोटेंसी डिपेंड करता है, जैसे मिश्रा अंकल ने मेरे को बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया कि गाय है, काउ लवर हूं, तो घर में देसी गाय है। तो लोग जनरली पूछते हैं कि गाय रखे हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि गाड़ी नया मॉडल आया तो माइलेज कितना देती है, तो गाय दूध कितना देती है। दैट इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मच मिल्क द काउ इज गिविंग। अभी 1 महीने पहले तक शायद मेरे घर में 5 गाय हैं, वो एक भी दूध 1 लीटर, आधा लीटर भी नहीं देती थी। तो मैं 1 महीने पहले एक गाय लेके आया जो बहुत रिक्वेस्ट करने पर 700 ग्राम 800 ग्राम ऐसा दूध देती है। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो दूध के रिलेटेड में जो माइलेज देख के जो गाय लेते हैं उसको जर्सी गाय बोलते हैं, बॉस टॉरस, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउस।
और अपना इंडियन ओरिजिन जो ब्रीड्स ऑफ काउस हैं उनको बोलते हैं बॉस इंडिकस। इनका वृक्ष और औषधि के साथ क्या वो रिलेशन है, मैं वही बोलना चाह रहा था, इसलिए गाय को जैसे अंकल ने बताया इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ गायों को। ये जो बॉस इंडिकस है, जो देसी गाय है अपनी भारतीय नस्ल जो है, उनका गोबर जो है वो भूमि को फर्टाइल करती है, उसकी पोटेंसी बढ़ाती है। तो सॉइल का पोटेंसी बढ़ेगा, उसका प्राण शक्ति बढ़ेगा, तो उसमें जो भी अनाज उठा या जो भी औषधि उसमें से निकला, उसका स्वाभाविक जो प्राण शक्ति है, जो पोटेंसी है, वो अलग लेवल का रहेगा। किसी चावल हम लेके आते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल एडिटिव्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, और दूसरी तरफ एक जगह से चावल आता है जहां पे हर्बल पेस्टिसाइड्स यूज हुआ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज हुए, हॉर्मोन्स वगैरह यूज नहीं हुए हैं। तो दोनों वो चावल देखने में ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन बॉडी में जाने के बाद फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे टोटली दे विल एक्ट डिफरेंटली। प्राण शक्ति बढ़ाएगा जो सेकंड हमने उसको बताया, जो ऑर्गेनिकली जिसका उपज हुआ है वो ऑल टुगेदर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉडी में वो स्ट्रेंथ, मेंटल लेवल पे वो स्ट्रेंथ, शरीर का प्राण शक्ति, वाइटलिटी, एनर्जी, एंथुजियाज्म, वो सब जो है इमीडिएटली दैट विल बूस्ट अप लाइक एनीथिंग। इफ द फूड इज गॉट from soil, that is very important due to addition of cow dung gotten from the Bos indicus variety of cows. तो एनवायरमेंट के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, जितना इंपॉर्टेंट सॉइल है उतना ही इंपॉर्टेंट काउ डंग है, जितना इंपॉर्टेंट काउ डंग है उतना ही इंपॉर्टेंट देसी गाय का भी है। तो सारा जो है इट इज ऑलमोस्ट वेरी साइक्लिकल। तो गाय को इसलिए माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि वेदों में जो है ऋग्वेद है, प्रमुख वेद अपने 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से जो फर्स्ट वेदा है ऋग्वेद, इसमें बोला गया है कि गाय जो है इनको पूजा करना चाहिए, इनको माता का दर्जा मिला है। को खाली हमको दूध देती है इसलिए माता का दर्जा मिला है क्या? नहीं, ऋग्वेद में ऐसा बोला है। क्यों? गाय जो है माता है क्योंकि वो हमको घी देती है। अभी इतना सारा रिसर्च हो गया है, ऑल द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ जो देसी काउस घी, इट इज गुड फॉर द नर्वस सिस्टम, गुड फॉर द स्किन, गुड फॉर द बोन्स, prevents osteoporosis, very good for the heart also। ये सारा नया रिसर्च तो ये आ गया अभी कि घी खाना अच्छा है, और शास्त्रों में लिखा भी है घृतहीन भोजनम कुभोजनम। लेकिन ऋग्वेद में बोला क्या है, गाय हमको घी देती है, उसका खाने में उपयोग उस समय नहीं बोला गया। उसको क्या बोला उन्होंने, गाय हमको we should worship cows as mother because they give us घी। अब घी को लेके हमको क्या करना है, यज्ञ करना है। जैसे साध्वी जी बता रहे थे कि मंत्र चैंटिंग का भी इफेक्ट है, और यज्ञ करते हैं तो क्या उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और मूड को बड़ा एलिवेट करता है। और नया रिसर्च क्या बोलता है, जो ऋग्वेद में बोला था कि यज्ञ करने से बारिश होती है, अभी नया रिसर्च ये बोलता है कि अगर देसी गाय के घी से हम हवन करते हैं then that leads to formation of fumes or nitrous compounds that help in formation of rain bearing clouds। देखिए कितना साइंटिफिक है अपना। 10,000 15,000 या 20-30,000 साल पहले अपने इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वेदों में बोलते हैं कि घी का हवन करेंगे तो बारिश होगी। अभी साइंटिस्ट आजकल बोलते हैं कि घी का हवन करने से वो नाइट्रस कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में आते हैं जिससे बारिश होती है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स। अब वो बारिश होती है तो हमको खुश क्यों होना है? बारिश आती है तो भूमि को तृप्त करती है और अनाज की उत्पत्ति होती है।
अनाज की उत्पत्ति होती है तो हम उसको खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं तो हम उसको खाते हैं। तो खाने के बाद वो जो पोटेंट सॉइल से और ये जो रेन्स के चलते अच्छा क्वालिटी का जो ग्रेन्स आया, हम उसको खाए, हमारा शरीर प्रसन्न हुआ, मन तृप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है, ऋग्वेद में बोला ये पूरा साइक्लिकल है। व्हेन आप तृप्त हो गए तो देन गो बैक अगेन टू डूइंग सेवा ऑफ द काउस। तो ट्री प्लांटेशन जितना इंपॉर्टेंट है, sustaining cows on planet earth is also equally if not more important। देसी गाय अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो है ये। और जैसे साध्वी जी बता रहे थे, कुछ कुछ ट्रीज का महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए, हम लोग अपार्टमेंट पे रहते हैं, आजकल अपार्टमेंट कल्चर है, न्यूक्लियर फैमिली का, तो जगह भी कम है, तो कोई भी पॉट्स में कैसा भी कुछ ना कुछ लगा दे। बेसिकली ये है कि कुछ ना कुछ उसमें से हमको मिले, चाहे वो स्पाइसेस के फॉर्म में हो, चाहे मेडिसिनल हर्ब्स के फॉर्म में हो, या कुछ भी फूड, टमाटर भी क्यों ना दे, लेकिन कुछ ना कुछ उससे मिलना चाहिए। पॉट्स में लेके हम खाली वो ग्रीन लीफी पाम्स के पेड़ लगाएं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। और घर के बाहर अगर स्पेस मिलता है, हम लोग देखते हैं आजकल काफी प्रचलन है बोटल पाम्स लगाने का। तो नारियल के पेड़ जैसा तो दिखता है, बड़ा सुंदर सा है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑलमोस्ट निल है। चलिए, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन देता होगा, वायुमंडल को शुद्ध करता होगा, ठीक है, लेकिन उसी स्थान पे देखिए ना, अभी 100 साल पहले तक एक स्टेटस सिंबल होता था कि किसके कितने नारियल के पेड़ हैं। क्यों? वो 4-5 जनरेशंस को फूड और कुछ ना कुछ वो सस्टेनेबल उसको वो जरिया रखता था, मिनिमम नारियल तो देता था। तो ट्री प्लांटेशन अगर हम करते हैं तो, क्योंकि प्रकृति ने तो ऐसा दिया कि हजार हजार लाखों लाखों तरह के पेड़ पौधे हमको दिए हैं। अब जो देश का, जिस देश का जैसा वायुमंडल है, हमको वैसा करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम हिमालयस में देखते हैं इतने सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। 50,000 60,000 साल पहले वहां पे पाइन ट्रीज स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करा के इतने लगाए गए, तो वो इतने डीप रूटेड नहीं होते हैं। वो स्विस एल्प्स के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ के वायुमंडल के लिए वो लैंडस्लाइड होल्ड करने के लिए उनके रूट्स इतने मजबूत नहीं होते हैं। तो लोकल टोपोग्राफी, ज्योग्राफी को देखते हुए जो जैसे पेड़ है वहां पे लगाना चाहिए। गुलमोहर के पेड़ सुंदर दिखते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे हम उड़ीसा में हैं, यहाँ पे विंड वेलोसिटी कभी कभी 200-250 तक पहुंचता है, तो वो तो आराम से एक छोटा सा साइक्लोन हुआ सारा टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है डीप रूटेड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग वो जो स्टेम हो, वैसा पेड़ लगाना चाहिए। तो हम जब भी कभी ट्री प्लांटेशन का वो मुहिम उठाएं, पहले तो ये देखें कि वो अपना ज्योग्राफी के लिए सूट करता है क्या, और उसका सूटेबिलिटी कुछ है क्या ज्यादा। जैसे साध्वी जी बता रहे थे इससे पहले कि बरगद का पेड़ है अक्षय, उसको जैसे प्राणी जगत में टॉर्टोइस का काफी लाइफ स्पैन होता है, तो बरगद का भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 400 500 600 साल तक बरगद एक रहता है खड़ा होके, एक ब्लेसिंग देता हुआ बुजुर्ग के जैसा, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइन। तो अगर उसको लगाया जाए तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हम ना तो उसके फूल खाने वाले, ना पत्ते खाने वाले, ना तो वो फल खाने वाले, ना तो उसका वो तने को लेकर कुछ करते हैं, ना तो उसमें से फर्नीचर बनता है। लेकिन क्या है, एक बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता ना, उसमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। उसमें बंदर जो रुकते हैं उसी पेड़ के फल खाते हैं, दूसरे पेड़ के फल खाते हैं, और उसका बीज जो है इधर उधर फेंक के वो ट्री प्लांटेशन वो लोग भी करते हैं। चिड़िया इतनी तरह के रहते हैं, इवन बैट्स, चमगादड़ भी उसमें रहते हैं। तो
हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर जैसे पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, इनको लगाए तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सारा जो है अच्छा होगा। मेरे को अगर बीच बीच में बोलते भी रहे तो कितना टाइम लिमिट है तो भी चलेगा। और another 5 minutes. another 5 minutes. अंकल कोई क्वेश्चन भी हो तो बीच में ले सकते हैं, we can divert it. Yes. Yeah. So अपार्टमेंट में रहने से हम तो एक तो वो कल्चर ऐसा हो गया कि मिट्टी लगता नहीं है पैरों में और पत्ते छूने का मौका नहीं मिलता। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अर्थिंग जो है जरूरी है। अर्थिंग होगा ट्री प्लांटेशन से और सॉइल का वैल्यू बेटर होने से। तो मैं तो रोटरी क्लब से यही मेरा विनती भी होगा कि इतना आप लोग कर रहे हैं अच्छा काम, एनवायरमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन होगा तो थोड़ा फोकस अगर गौशाला के ऊपर दे, क्योंकि वो बहुत सारे गौशाला ऑलमोस्ट दे आर डिफंक्ट, क्योंकि वो लोग चलते ही है चंदा के तरह। तो अगर गाय के ऊपर थोड़ा सा दिया जाए तो एनवायरमेंट के ऊपर काफी अच्छा वो इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मेडिसिन जो है, अब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं तो आयुर्वेद के हिसाब से बोलूंगा कि आयुर्वेदा रिवॉल्व्स टोटली अराउंड प्लांट्स। हम लोग हालांकि सभी चीजों से मेडिसिन बना ही लेते हैं, आप कोई भी चीज बोलेंगे उससे हम लोग कुछ ना कुछ मेडिसिन तो बना ही लेते हैं। जैसे किचन में भी जो धुआं होता है ना ऊपर एग्जॉस्ट फैन के आसपास, गृह धूम बोलते हैं उसको, इवन दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, दैट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ मर्करी। मर्करी का इतना यूज है। तो आयुर्वेद वाले जो है कुछ ना कुछ सभी चीजों से कुछ ना कुछ मेडिसिन बना ही लेते हैं हम लोग, लेकिन मेन जो है आयुर्वेदा रिवॉल्व करता है अराउंड प्लांट्स। अब प्लांट्स का पोटेंसी अगर नहीं होगा तो मेडिसिन दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्ट ऑन द सिस्टम। और मेडिसिन का पोटेंसी आएगा व्हेन द पोटेंसी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। Potency of the soil will increase for sure if the soil gets continuous doses of देसी cows dung. तो जितना important tree plantation है for the environment, उतना important देसी गाय का गोबर भी है। तो अभी कोई क्वेश्चन भी होगा तो मैं full 100% दूंगा उसको आंसर। If anyone wants to ask any questions, right, unmute yourself and you can please ask. Yeah, thank you, Dr. Tapas ji. In fact, I feel it is destiny that हमारा ये स्पीकर मीटिंग था 5th को। देखिए आज इतना अच्छा शुभ दिन है, रथ यात्रा है। इस दिन जो साध्वी नित्य जी कितने अच्छी बात रखी है सबके सामने। और डॉक्टर तापस जी आपने भी जो ये वृक्ष गांव को लेके जो समीकरण बताए हैं ये बहुत ही अच्छी चीज है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का भी जो ईयरली प्लानर है इसमें गौशाला भी है, तो गौशाला एक्टिविटीज भी है। अगर भुवनेश्वर में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है और तो आप हम लोगों को बताइए। और पास पर्सन DW मिश्रा जी आपके साथ है तो वी कैन डू समथिंग फॉर दैट। और नाउ आई रिक्वेस्ट मेंबर्स टू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क टू आवर स्पीकर्स। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I think Saroj Mahapatra the question. Saroj Mahapatra, please. Yes. Unmute करो। No, Yeah, what is the Avantika- my question is what is the difference between Desi cow dung and Jersey cow dung? What is the difference, please? Yeah, sir, very good. ये Yeah. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, one of the best question. So what is the difference between a देसी cow dung and Jersey cow dung? दोनों तो डंग है, दोनों गोबर है। देसी काउ डंग
हम लोग ऑलमोस्ट सारे लोग गांव से ही जुड़े होके आए होंगे शहर में। देसी काऊ डंग जहां पे गोबर पड़ता है उसके ऊपर रेयरली मक्खी बैठता है फर्स्ट, उसके ऊपर मैगट्स कभी बनते नहीं है, और किसी भी प्राणी का वो मल होगा उसके ऊपर तुरंत जो है मक्खी बैठती है, अंडा देती है और उसमें मैगट्स बनते हैं, स्मेल आता है। लेकिन इसका जो बैक्टीरियाइडल प्रॉपर्टी है देसी गोबर का, उसमें मैगट्स बनते नहीं है। उसमें क्या बनते हैं देसी गाय के गोबर में, वो ऐसा कंड्यूसिव करता है कि उसमें अर्थवर्म्स बनते हैं, दोनों में बनते हैं। जर्सी गाय के गोबर में भी अर्थवर्म्स बनते हैं, देसी गाय के गोबर में भी अर्थवर्म्स बनते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि देसी गाय के गोबर में जो अर्थवर्म्स बनते हैं उसमें इंडिजिनस ब्रीड के अर्थवर्म्स बनते हैं जिसको इंडी वर्म्स बोलते हैं। उसका खासियत क्या है, वो जो अर्थवर्म्स का एक ही काम होता है, इधर उधर वो मिट्टी के नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे। तो जो है वो सॉइल को जो है पोरस बना देते हैं, एक स्पॉन्ज जैसे। तो जैसे अपना शास्त्रों में वर्णन है कि जहां पे देसी गाय रहती है तो वहां पे वाटर लेवल राइजेस अप, वरुण देवता उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो साइंटिफिकली अभी ये प्रूफ होता है क्योंकि काउडंग जहां पे गिरता है वहां पे अर्थवर्म्स का फॉर्मेशन होता है तुरंत। अर्थवर्म्स जो है वो सॉइल को परोस करती हैं, सो दैट एक्ट्स टू कैच रेन वाटर वेरी इजीली। सो रेन वाटर कैच होता है वो नीचे, दैट इंक्रीजेस द वाटर टेबल। अब डिफरेंस क्या है, इंडी वर्म्स जो देसी काऊ के गोबर से जो बना है, दे आर वेरी पोटेंट। एक्सोटिक ब्रीड के जो गोबर में जो है अर्थवर्म्स, दे आर कंपैरेटिवली लेजी, दोनों सॉइल के ऊपर नीचे होते हैं, बट एक्सोटिक वर्म्स जो है दे ड्रिल हॉरिजॉन्टली। ये साइंटिफिकली सारा प्रूव्ड है, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग ज्यादा करते हैं। इंडी वर्म्स जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग ज्यादा करते हैं। तो वर्टिकल जितने ज्यादा तक जाएंगे उतना ही सॉइल पोरस होगा, उतना वाटर जो है कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है। यही मेन डिफरेंस है। तो वेदों में जो लिखा है कि गोमय तिष्ठते लक्ष्मी, तो गोबर के ऊपर महालक्ष्मी जी का वास है, उसका साइंटिफिकली यही है। लक्ष्मी जी तो पानी के ऊपर ही बैठते हैं ना, वाटर टेबल रेज नहीं करेगा तो लक्ष्मी जी कहाँ बैठेंगे फिर। तो वही है, इंडी वर्म्स का फॉर्मेशन के लिए कंडीशन बना देता है देसी गाय का गोबर, वही मेन है। और इतना स्मेल नहीं करता एक्चुअली एक जर्सी गाय का गोबर जो है, क्योंकि डिफरेंस यही आता है कि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी छोटा है। ये जो एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउस है कंपेयर टू द इंडिजिनस ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउस के इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है काफी लंबा होता है। तो उसमें काफी हेल्दी वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के चलते वो पूरा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होके ऐसा आता है कि उसका थोड़ा दुर्गंध तो नहीं होता, मैं सुगंध भी बोल देता हूँ, उसका थोड़ा वेरी गुड फ्रेग्रेंस भी आता है देसी गाय के गोबर का। So I hope I have answered it. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. डॉक्टर साहब, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि देसी गाय का जो काउडंग है उसका औषधि तत्व जो है ये निश्चित ही ज्यादा परिणामकारक रहता है। माननीय डॉक्टर साहब ज्यादा मार्गदर्शन करेंगे उस पर प्लीज। हाँ, अभी इतने सारे कैंसर के ऊपर काम हो रहा है पंचगव्य से। और पंचगव्य मतलब गोबर भी है, गोमूत्र भी है, गोदुग्ध भी है, गोदही है और घी है। ये पांचों में गोबर भी है। अब जर्सी गाय का गोबर है दैट इज वेरी स्टिंकिंग, वो उसको टच करने से भी बड़ा अजीब सा फील आता है। लेकिन देसी गाय का गोबर को टच करने से इमिडिएटली, हालांकि हमारे घर में एक योगा सेंटर है, तो श्री यूनिवर्सिटी के योगा डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा रहा था उस समय, तो कुछ बच्चे आए थे उस समय। तो 4 डेज का वो वर्कशॉप था जिसमें से 3 दिन साइलेंस का था। 3rd डे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आज जो है अभी गोमय तिष्ठते लक्ष्मी है, चलो गोबर पे लक्ष्मी जी का वास है, तो आज इसको टच करके देखते हैं। तो सारे बच्चों ने, करीब 30 बच्चों ने मिला के वो उपले बनाए, काउडंग केक्स, आधा घंटे तक बनाया होगा उन्होंने। उसके बाद जो मेडिटेशन का सेशन था उसमें फीडबैक ऑलमोस्ट सभी का यही था कि दिस मेडिटेशन सेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट in our whole life. All are big time yoga students.
तो काफी सालों से योगा भी कर रहे हैं और मास्टर्स इन योगा के स्टूडेंट्स थे। तो ये बड़ा अच्छा फीडबैक था कि गोबर को पकड़ा और मन जो है ध्यानस्थ हुआ। तो ये चीज जो है देसी गाय के गोबर में ज्यादा है, उसमें हीलिंग कैपेसिटी, वो प्राण शक्ति ज्यादा है। मैं गया था एक कैंसर के पेशेंट्स को लेके वलसाड में, गुजरात में काफी बड़ा एक है हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक चिकित्सा से होता है कैंसर का निराकरण, उसका चिकित्सा भी होता है। तो साथ में वो लोग प्रोमोट वही करते कि सुबह जो है एक एक ग्लास लेके आ जाओ, आप सबको पंचगव्य मिलेगा, लाइन से खड़े होना है। तो पंचगव्य का यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा रिसर्च हो गया है, इसलिए बाहर के देश में अपने विदेशी गाय की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ब्राजील इज नाउ almost number one in terms of Bos indicus cows population. तो 1950s में उन्होंने लिया गाय यहाँ से, गिर गाय, कांकरेज गाय, उन्होंने अच्छा काम किया है उनका संरक्षण करते हुए, लेकिन इंडिया इज वेरी लैगिंग नाउ। तो हमको तो कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। शायद एक और क्वेश्चन भी आया है इससे रिलेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घी ऑफ बॉस इंडिकस एंड बॉस टॉरस? देसी गाय का घी और विदेशी नस्ल के गाय के घी में डिफरेंस क्या है? तो विदेशी नस्ल के गाय जो दूध देती है, दैट कंटेन्स अ केमिकल, इट इज कॉल्ड एज बीटा कोसोमॉर्फिन। बीटा कोसो, द लास्ट वर्ड मॉर्फिन, so it is chemically and structurally very similar to opium like substances. तो लास्ट 50-60 साल से हम लोग जो दूध पी रहे हैं व्हाइट रिवोल्यूशन के चलते, विदेशी नस्ल का दूध जो है बीटा कोसोमॉर्फिन, रिसर्च ये बोलता है दैट कैन कॉज एनीथिंग इन द बॉडी एक्सेप्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो एक बॉडी में प्रेगनेंसी को छोड़ के वो कुछ भी डिजीज कर सकता है। इनफैक्ट इंडिया का जो मैक्सिमम जो कैंसर पेशेंट्स है, इतना हाई, इंडिया इज नाउ ऑलमोस्ट नंबर 1 इन डायबिटीज। तो सारा श्रेय जो जाता है विदेशी नस्ल के गाय के दूध को है। इट इज कॉल्ड A1 मिल्क। ये सारा रिसर्च है, डाटा गवर्नमेंट निकालते नहीं है, वो थोड़ा बायस्ड है इस चलते। तो A1 मिल्क इसको बोलते हैं, जो विदेशी नस्ल के गाय जो दूध देती हैं। तो A1 मिल्क से जो घी बनता है, दैट रेजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड्स। लेकिन देसी गाय के दूध से जो घी बनता है, A2 घी जिसको बोलते हैं, उसमें वो A1 वाला जो खराब गुण है वो नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि घृतहीन भोजनम कुभोजनम। तो भोजन कैसा भी हो उसकी शुद्धि होती है अगर उसमें थोड़ा घी डालते हैं। तो घी अगर A2 घी हो, देसी गाय के घी हो, तो दैट इज वेरी गुड। वो केमिकली बॉडी में अच्छा ही काम करता है। इवन नया रिसर्च तो ये बोलता है कि यूनिवर्स में अगर कुछ ऐसा चीज है, हेल्दी स्टफ दैट रेजेस द गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड्स जिसको बोलते हैं, देन दैट इज A2 घी। तो यही मेन डिफरेंस है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। तो देसी गाय के घी में ही वो चीज पर्याप्त मात्रा में है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यही है मेन। देन डॉक्टर एसके दास। और देसी गाय जो गोबर होता है उससे रेडिएशन इफेक्ट नहीं करता हमें। देसी गाय, इसलिए देसी गाय के गोबर का लेपन हमारे घरों में और आंगन में कहा गया है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि जो भी त्वचा के, जैसे कि अभी सोराइसिस नाम की बीमारी बहुत सारे लोगों में दिखती है। सोराइसिस पे सबसे अधिक अगर बिना साइड इफेक्ट हुआ कोई उपचार अगर सिद्ध हुआ है, विज्ञान भी इसको मान चुका है, वो है गाय का घी और गोबर और गोमूत्र का उपचार। और त्वचा के कैंसर में भी ये बहुत ही लाभदायी है, लेकिन सिर्फ देसी गाय का। डॉक्टर साहब, मानिए डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो कौन तो डॉक्टर स्वयं? हेलो कौन तो डॉक्टर स्वयं? कौन तो? पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर हेलो कौन तो? I have one question. I have to know one thing. Please, What is the difference in chemical composition of the desi cow dung and the
Jersey cow dung, chemical composition. Chemically- Now they have explained it in a general term, but chemically, what is the composition difference? Chemically, I think maybe some specific phenol-like substances have more in desi cow's urine and this cow dung. देखिए यूरिन के ऊपर तो काफी रिसर्च हो गया है Suniya, that is like when we take a urine or a human extra for testing to any doctor, they test, there are some parameters. So which parameter, what is the percentage? Then they did, when a doctor for treatment sees that, he sees whether these are normal or below normal or above normal, then he prescribes medicine. Similarly, for cow dung, what are these parameters to compare and what is the percentage of composition, like you told in ghee, bad cholesterol and good cholesterol? That is a general term. But in milk, you have protein, you have fat, you have sugar, you have water, like that. In Jersey cow milk and desi cow milk, when we compare these parameters, what is the percentage, and from that, Yes, which one is better? That will be scientific. Okay, question. let us be. Okay, thank you very much. Let us be brief with the question. I think this is the last question. I have Dr. Dr. Tapas. Das, please be brief Dr. with the Tapas. questions. So I have one question. So which is important for us, whether milk or cow dung? That is my first question. Second one is, you gave the explanation that there is a difference between the length of intestine of desi cow and the Jersey cow. I don't agree to it because I am an animal scientist. I am a doctor, professor of veterinary science. Whatever we read in the anatomy, practically there is no difference in the anatomical structure in the Jersey cow and desi cow. Moreover, the Jersey cow, the fat percentage is much more higher than the desi cow. But in as regards the quality, you told that the desi cow ghee is comparatively in medicinal values, it has got more importance than the Jersey cow. That is right. But the intestinal length, that is, I don't agree to it. And another thing, you please tell me which is important for us, milk or cow dung? Sir, which is exactly important? Eating rice or having dal also. So both have their own state of importance actually. Cow dung is important for the soil, for the environment. Milk is important for us, for the body. And regarding chemical composition and what all data I have told it, I have all got it from eminent veterinarians and scientists who are working exclusively with the Bos indicus, the indigenous breeds of cows. And they have categorically told that the length of the intestine in Bos indicus, it's comparatively a little bit longer as compared to the Bos taurus breeds. And the Bos indicus variety includes around 70 to 75 breeds. So more than 75 breeds of cows are there in the national register of dairy animals. And they all have different, totally different characteristics. Their milk have different characteristics. Their cow dung, their urine have totally different characteristics. खाली एक ही मापदंड रहेगा कि फैट परसेंटेज इतना होगा तो अच्छा है, तो that is very debatable actually. For an example, आंध्र प्रदेश का एक ब्रीड है जिसको पुंगानूर बोलते हैं. प्लीज म्यूट कर दीजिए.
म्यूट कीजिए। Dr. Ashok Panda, please mute yourself. I think with this we'll Tapas, please conclude unmute. Okay, okay. question answer. With this we'll conclude our question answer session because we have Please continue. time. Dr. Tapas. इसमें एक और बात कहना Dr. चाहती हूँ। Tapas, हाँ, बोलिए। वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पे है, क्या आप ये बता सकते हैं जर्सी और होलिस्टीन का किस किस प्राणियों के साथ ब्रीड बनाया जाता है? क्योंकि देसी काऊ सिर्फ देसी काऊ से ही बनती है, तो ये भी उसकी जो परिणामकारकता है ना, उपयोगिता, ये भी बहुत उसमें महत्वपूर्ण बात, बराबर है ना डॉक्टर तापस जी? मैं इसमें चीज बोलूंगा एक, कि ऐसा बोलना शायद गलत होगा कि जो है जर्सी ब्रीड कुछ प्राणियों से आया है, ऐसा नहीं है। गाय आई है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई, वो बॉस इंडिकस है, इंडिजिनस ब्रीड्स है। जो दूसरी तरफ यूरोप की तरफ चली गई वो बॉस टॉरस है। तो वो एक्चुअली कुछ ना हिंदू फैनेटिक लैंग्वेज थोड़ा बोल देते कि वो पिग से आए हैं या दूसरे जानवर से आए, ऐसा नहीं है। अगर उनका डीएनए तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉस टॉरस जो है मैन मेड वो नहीं है, वो प्रकृति ने ही भेजा है, लेकिन उस क्लाइमेट के लिए वो ज्यादा सुटेबल है। Jersey cow is not Indian cattle breed. It is brought from other countries. Holstein also it is brought from other countries, but they are not other than cow. They are cows. They are cows, but they are not our country. They are not the breed of our country. But Bos Indicus, they are the breed of Indian. उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर का वजन और उनके दूध उत्पादन की और प्रजनन क्षमता बढ़ाई जाए, इसलिए उसमें कुछ ब्रीड का नहीं ऐसे कुछ नहीं है। They are raised in cold climate, and to make them suitable in our climate, we are breeding them with Jersey, with our Indian breeds, so that the offspring which will come out, they will have a little more higher production. So that is the, otherwise was that Jersey breed is from other countries, and they are mostly from cold countries, and they perform better in their cold climatic condition. So in India, pure Jersey breed, they will not perform that much better because our climatic condition does not favor them. Yes. I can accept that, but the most prominent difference between Indus cow and the foreign cow is the hump. Medicinal and whole the क्या बोलते हैं ना हम, इसका जो मेडिसिनल जो है देसी काऊ का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो एक हम और उसके जो सिंग है उससे बहुत ही बढ़ जाता है, जो इसमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। हाँ, ये सूर्य केतु नाड़ी जिसे संस्कृत में कहा जाता है, और इससे इनके दूध में जो एक विशेष गुण आता है वो इनके दूध में नहीं पाया जा सकता। Indian cow, the milk, the medicinal values of the Indian cow's milk is definitely it is superior than the Jersey and Holstein. Medicinal values, not other chemical composition, only medicinal values. नहीं, ऐसा नहीं है। इनका दूध A2 मिल्क कहा जाता है और देसी काऊ का A1 कहा जाता है। नहीं, that's why I'm telling the medicinal values of Indian cow's milk is superior than the milk of the Jersey cows and Holstein milk of Holstein cows. Yes. They are giving higher production, but as regards the medicinal values, the milk of Indian cows is superior medicinal values. But we need more milk for our to meet our requirement, daily requirement of our population. That's why so with Indian cows, it is not possible. That अच्छा, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा, बस लास्ट में 2 चीज बोलूंगा। इंडियन ब्रीड्स कम दूध देती है ऐसा नहीं है। इंडिया के कुछ ब्रीड्स हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं, जैसे पंजाब का हरियाणा ब्रीड हो गया, राठी हो गया, साहिवाल हो गया। दे गिव मिल्क लाइक एनीथिंग, इवन बेटर कंपेयर टू द एक्सोटिक वंस। लेकिन क्या है, कुछ ब्रीड्स है, जैसे अपना उड़ीसा का है भूमसूरी ब्रीड,
वो बेचारी कहाँ देगी, वो 500 ml भी नहीं देती है, बिजहर पूरी 6-7 लीटर देती है। लेकिन क्या है, सबका जो है टोपोग्राफ, वो ज्योग्राफी को लेके प्रकृति ने वैसा ही दिया है, कैसा मैन्यूवर करके वो जाती है। अब गुजरात के जंगल में गिर है, तो भगवान ने दिया गिर में वो लायंस भी घूमते हैं, तो लेकिन बड़ा इसलिए कद है और मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो सारा जो है ज्योग्राफी रिलेटेड स्पीसीज ही हैं। Yes, you are right. Yes. So thank you, डॉक्टर तापस जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सब बुझाए। और थैंक यू डॉक्टर दास, आई नो यू आर वेरी knowledgeable, you are expert in veterinary science. Yes, we are very proud of you. So it's a very interesting and very debatable subject, very vast subject, and we need lot of time for that, but we have time constraint. And with this, we conclude our question answer session. Rotarian Pramod Das ji, please go with your slides, and we'll go for the Thanksgiving ceremony. Meantime, our Sergeant at Arms Vandana ji, are you ready with your statistics? Yes, sir, I'm ready. So, Rotarian Pramod Das, please go with your slides. We are really very much thankful to our wonderful speakers. It's very interesting, and they have shared a lot of knowledge. Maybe some other occasion we will invite you. And we also like to invite all of you to our विदर्भ नागपुर आश्रम। आप सभी को मैं नागपुर विदर्भ आश्रम की तरफ से और उनके एडमिन कौस्तुभ जी हैं और डॉक्टर तापस जी की ओर से भी विदर्भ नागपुर आश्रम को आप जरूर विजिट कीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है, सभी से आप जरूर आइए। डॉक्टर दास, आपको भी आमंत्रण है, हमारी वहाँ छोटी सी गौशाला है, उसका आप जरूर विजिट कीजिएगा, और हमारे लिए कुछ सूचना है तो वो भी जरूर कभी भी आएंगे तो जरूर। नागपुर मैं एक सूचना दूंगा। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। मैं पहले सनमार्ग न्यूज़पेपर का मुख्य था, अभी मैं हम लोग का एक पेपर है दुमानी मेल बोलकर, मैं इस पेपर का एडिटर हूं। तो आप लोग दोनों को मैं एक दिन अपना ऑफिस में बुलाऊंगा और आपका एक तो इंटरव्यू लेकर बढ़िया से मैं एक तो आपका सुंदर एक तो ब्यूटीफुल एक तो स्टोरी जरूर बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं आप सोचा था मैं आपको बोलूं। और DW मिश्रा जी मेरा दोस्त है, तो मेरा टेलीफोन नंबर उनका पास है, तो आप आपसे मैं उनका टेलीफोन लेकर जरूर हम लोग बैठेंगे, एक सुंदर चर्चा होगा और बहुत बढ़िया हम अखबार में आपका बारे में जरूर लिखेंगे। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पंडा, प्लीज गो विथ योर vote of thanks, and also I'll same time request our Rotarian Pramod Das to share the slides, please. स्लाइड चालीची किंतु स्लो होउची तो सेटमेंट प्रॉब्लम। और इस गो संवर्धन के लिए और गो जतन के लिए भी हम आप सभी को आह्वान करते हैं, आपका सहकार्य अपेक्षित है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है। अभी डॉक्टर अशोक, पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक पंडा, I request you to kindly offer your vote of thanks, please. अनम्यूट करा। बहुत ही सुंदर चर्चा हुई है, और कोई भी चर्चा प्रकृति के ऊपर अगर होता है तो बहुत शानदार होता है, हर आदमी को दिलचस्पी होता है। इसीलिए मैं रोटरी क्लब ऑफ भुवनेश्वर के तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और मैं जैसे आपसे बताया, आप वृक्ष और औषधि के बारे में जो बोले बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है सबको जानकारी के लिए बहुत आग्रह है। और मैं इतना बताऊंगा कि देखिए ऑक्सीजन के बारे में आप जो बोले, ये जो पैंडेमिक में देखिए, ऐसे तो आप जानते हैं 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है,
मगर हम लोग क्या प्रकृति का हम लोग ध्यान नहीं लिए, इसलिए हम लोग को बहुत भोगना पड़ा। मगर आप देखते हैं ऑक्सीजन का कीमत हम लोग को पता चलता कब, जब हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और जब हम लोग को सिलेंडर नहीं मिलता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई हम लोग कहाँ आ गए। मगर जब प्रकृति को अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग का कमी होने का कोई चांस है ही नहीं। तो मैं रोटरी क्लब भुवनेश्वर की तरफ से साध्वी नित्या जी, वैद्य तापस जी को मेरा प्रणाम, और मैं आशा करता हूं कि खूब शीघ्र आप लोग हम लोग फिर बुलाएंगे, आपका साथ चर्चा करेंगे, और आप भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। इसका साथ मैं आपको मेरा प्रणाम और मेरा वक्तव्य शेष करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद दास समथिंग किसी गोटे प्रोब्लेम होची बोधे से नेटवर्क रे आसुनी। ठीक है। मु तो ऑलरेडी स्क्रीन शेयरिंग करी छी। क्वेश्चन Rotarian Vandana, please give the attendance statistics. Yes, sir. 39 Rotarians were present in today's meeting. Hello. And we have some guests also. I recognize the presence of IPP Geeta from Gangtok. Yes, sir. She And was also present. some other yeah, and also I have seen some of our prospective members, including PN Sahu and some others are also joined. So I thank you for putting the slide of Dr. Pramod Das. अच्छा प्रॉब्लम होची एटा होनी। समथिंग इज रॉन्ग। Anyway, so with this, I think it's time to